سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایز اے پیرنٹس ہمیں اپنی اولاد کو بہت ہی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اولاد میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ جب بیٹی کی تربیت کر رہے ہوں تو اسے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بیٹا کل کو جب آپ کی شادی ہو تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنی ہے، اس کے تابع رہنا ہے، جو وہ کہے وہ کرنا ہے، جس کام سے منع کرے روکے اس سے رک جانا ہے۔ اسی طرح اپنے بیٹے کی بھی تربیت کریں کہ بچے جو بھی بیوی کل کو آپ کی زوجیت میں آئے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو حلال اور طیب رزق کما کے لا کے کھلانا بھی ہے، اس کی خواہشات کی، اس کی ضرورتوں کی، تمناؤں کی تکمیل کے لیے، جائز حق کے لیے کوشش کرنی ہے کہ پورا کرو۔ کوئی زیادتی ظلم اس پر نہیں کرنا، جو اللہ کی باؤنڈریز ہیں، فرمان ہیں، اس کے مطابق اس کو رکھنا ہے۔ بیٹیوں پر ذمہ داری زیادہ ہے، بیٹیوں پر ذمہ داری زیادہ ہے۔ شادی سے پہلے ہی ان کا ذہن بنانا ضروری ہے۔ بہت ساری بچیاں ہوتی ہیں بعض اوقات شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی، لہٰذا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کو تربیت کرنا، تیار کرنا۔ کیا تربیت کرنا، کیا تیاری کرنا کہ بھئی گھر کے کام کاج میں، کھانے کے پکانے اور بنانے میں لرن کریں، گھر کی تمام ذمہ داریاں، صفائی ستھرائی سے لے کے کوکنگ اور لانڈری، ہر چیز، بندے کی تیمارداری، خدمت، ہر چیز شامل ہے اس میں۔ سکھائیں بیٹی کو، سمجھائیں کہ بیٹا آج تم ہماری خدمت کر رہی ہو ایز اے پیرنٹس، کل کو تمہیں اپنے ساس اور سسر کی بھی خدمت کرنی ہے۔ کیا جائے کہ وہ تمہارے پیرنٹس نہیں ہیں، تمہارے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں، لیکن پھر بھی وہ تمہارے لیے ماں اور باپ کی جگہ ہی ہیں۔ بیبیاں کیا کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں جھول کر جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں چوک کر جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتی ہیں۔ ماں باپ کی تو خدمت کی، ساس سسر کی نہیں کی۔ ماں باپ کی تو آڑی ٹیڑھی باتیں بھی سن لی، ڈانٹ ڈپٹ بھی سن لی، مار بھی کھا لی، لیکن ساس سسر کی ذرا سی بھی بات کو برداشت نہیں کیا، گھر میں کوئی نہ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد کھڑا کر دیا۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو شادی سے پہلے ہی تربیت کر کے تیاری کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ انہیں پتا ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس نے خدمت کرنی ہے، اس نے اپنے ہسبینڈ کے تابع رہنا ہے، اپنے ہسبینڈ کی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، ایک اچھی بیوی بننا ہے، جیسے وہ رکھے ویسے ہی خوش رہنا ہے، جتنے کپڑے دے اس میں خوش رہنا ہے، جتنے زیورات دے اس میں خوش رہنا ہے، جتنی کمائی کر کے لائے اس میں خوش رہنا ہے، اسی پر اکتفا کرنا ہے، اسی پر گزارا کرنا ہے۔ اگر ہسبینڈ کمزور ہے عملی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تو کوئی بات نہیں، پھر بھی اسے قبول کرنا ہے۔ ہسبینڈ کمزور ہے معاشی اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، پھر بھی اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے۔ وہ بہت دانا ہے، بڑی معاشرے میں اس کی عزت ہے، پھر بھی اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اسے گھر میں عزت نہیں دیتا، وہ گھر میں چھوٹا ہے یا تھوڑا سا سادہ ہے، بدھو ہے، پھر بھی آپ نے ایز اے وائف اس کی خدمت کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا،
शिकायतें नहीं करनी, लड़ाइयां नहीं करनी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मेराज की शब आपके और मेरे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब मेराज से वापस तशरीफ लाए तो बीबियों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों के लिए कोई कुछ आपने देखा हो, कुछ मुशाहिदा किया हो, मुलाहिजा किया हो तो बताइए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम के गहरे गड्ढे में औरतों को सजा पाते हुए देखा। औरतें डर गई, घबरा गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मामला था उनके साथ। आपने फरमाया ये वो औरतें थी जो अपने हस्बैंड से खुश नहीं रहती, उसकी शिकायत, उससे शिकवे, गिले और नुक्ताचीनी और लड़ाई झगड़े करती थी। अगर उसकी कमाई थोड़ी थी तो इस पर भी एतराज था, अगर वो इल्म में थोड़ा नाकस था, कमजोर था, इस पर भी एतराज था। कभी वो गिला शिकवा लड़ाई उसके मुंह पर करती, कभी अपने मायके वालों से जाके उसकी बुराइयां, उसकी खामियां निकाल के आगे रखती, उनको बताती, शिकायतें करती। ये वो औरतें थी जो जहन्नम के गहरे गड्ढे में सजा पा रही थी। लिहाजा खुदारा जो भी आपका हस्बैंड आपको दे, थोड़ा है या ज्यादा, शुक्र अदा किया करें, गिला ना किया करें, शिकायत ना किया करें। हाँ, अल्लाह के हुजूर दुआ जरूर किया करें कि या अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, वुसअतें अता फरमा, इसे तरक्की अता फरमा। अगर उसका हस्बैंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे कमा के माल इकट्ठा करके घर ला रहा है तो भी पूछना है कि अल्लाह के बंदे, ये जो कुछ तू लेके आ रहा है ये तेरे कारोबार से या तेरी नौकरी से ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है। अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है तो कहीं रिश्वत तो नहीं लेता। मना करना है, रिक्वेस्ट के साथ मना करना है। और अगर कारोबार कर रहा है तो कोई दो नंबरी तो नहीं कर रहा। खुदारा ना करना, मैंने कभी तुमसे तलब नहीं किया कि मुझे और ला के दो, और सोना खरीद के दो, और जेवरात बना के दो, और गाड़ियां लेके दो, बंगले लेके दो। तो फिर ये तुम्हें हराम करने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत हमें। जो भी रूखी सूखी आपकी मुलाजमत से आएगी हम वो खाएंगे, जो भी सही मुनासिब आपके कारोबार से आएगा हम उसमें गुजर बसर करेंगे। हराम के लिए रोकना है अपने हस्बैंड को, और जो भी वो लेके आए रूखा सूखा थोड़ा, बस उसी में गुजारा करो, गिला शिकवा नहीं करना। एक और बात, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सईदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया गया, हजरत सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कराया गया, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो अंबियाओं के भी सरदार हैं, इमाम हैं, तो अगर आप इजाजत फरमाएं तो हम भी आपकी खिदमत में सजदा ताजीम बजा लाएं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। आपने फरमाया नहीं, सजदा रब को है, सजदा मुझे नहीं है, सजदा जायज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं अपनी उम्मत में किसी को सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने हस्बैंड को सजदा करे। जरा गौर कीजिए, अल्लाह और उसके प्यारे नबी हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अगर मैं हुक्म देता अपनी उम्मत में किसी को, तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने हस्बैंड को सजदा करे। इसका मतलब ये हुआ कि रब के बाद अगर किसी की ताजीम है औरत के लिए तो वो उसके हस्बैंड की है। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये है, कुछ खातून का, बीवियों का ख्याल ये है कि नहीं नहीं, वो बात तो मेरे बाबा ने कही थी, मेरे बाप ने कही थी, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? अपने हस्बैंड से लड़ जाती है। वो बात तो मेरी माँ ने कही थी, मैं उसको फॉलो करूंगी, तुम कौन होते हो मुझे लेक्चर देने वाले या रोकने वाले उस बात से? हाय, सुन लीजिए, शादी के बाद माँ और बाप से भी ज्यादा हक उसके हस्बैंड का होता है।
یعنی ہسبینڈ کسی بات سے منع کر دے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور وہ اس لڑکی، اس خاتون، اس عورت کے ماں اور باپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ کام کر لو، تو فرمان یہ ہے کہ ہسبینڈ کی سننی ہے، ماں باپ کی نہیں سننی، سخت منع ہے۔ شادی کے بعد خامند کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ ہے، رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہے، اور آج کی بیویاں تو سہیلیوں کو آگے کر دیتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو پچھاڑ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، خدارا ایسے نہ کیا کریں، ہسبینڈ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ بھئی میں نے اتنی تعظیم کی اپنے ہسبینڈ کی، اتنی خدمت کی اپنے ہسبینڈ کی، تو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے تو ساری زندگی عورتوں کے کہنے کے مطابق چلے ان کو ذرا ٹھارس مل جائے، میں نے تو ساری زندگی نوکری کی، غلامی کی اپنے ہسبینڈ کی، تو مجھے کیا ملا؟ ہاں وہ بھی بتاتا ہوں۔ جو اولاد اس نے جنی، جو اولاد اللہ پاک نے اسے دی، جن بچوں کی وہ ماں بنی، ان بچوں سے اس کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ یہ بھی حدیث مبارکہ کے مطابق فرمانے علی شان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کسی صحابی نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ سب سے زیادہ مرد پر حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا۔ پھر دوبارہ موقع بنا، پھر دوبارہ اسی صحابی نے وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرما دیجئے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر تیسری بار موقع بنا، پھر پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر چوتھی بار موقع بنا، اس نے پھر چوتھی بار پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد تمہارے باپ کا۔ یعنی 3 حق تمہاری ماں کے ہیں اور 1 حق، چوتھا حق تمہارے باپ کا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، عورت کے لیے 2 کمائیاں ہیں، 1 کمائی نہیں ہے۔ ایک، اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرے اور اجر پائے گی، اور 2، اپنی اولاد کی ماں بن کر عظمت پائے گی۔ یاد رکھیے گا، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ باپ کے قدموں تلے جنت ہے، فرمان یہ ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت، آپ نے بھی سنی ہوگی، میں صرف یاد دہانی کے لیے مینشن کر رہا ہوں صاحب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو 2 بیٹیاں دے اور وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کر کے، شادی کر کے رخصت کر دے، تو وہ جنت میں میرا ہم نشین ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حدیث مبارکہ کافی لمبی ہے، پھر کسی نے دریافت کیا کہ حضور 1 بیٹی اور جس کی نہ بیٹی، یا 3 بیٹیاں، تو کافی ساری لمبی ہے، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں جو چیز آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہیں پہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 2 بیٹیاں ہوں، ان کی پرورش کریں اور اللہ پاک جنت عطا فرما دے، اس میں کیا کمال ہے؟ اولاد تو اولاد ہے، وہ میں تو میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کو پالا پوسا، جوان کیا، شادی کر دی، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اتنی عظمت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کہ وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ ہاں جی، سن لیں، یہی بات جو میں نے پہلے عرض کی ہے، یہی ریزن ہے اگر کسی کو اللہ پاک بیٹی عطا فرمائے اور وہ بیٹی کی اچھی تربیت، وہی تربیت جو میں ابھی پہلے عرض کر رہا تھا، اسے سکھائے، اسے وہ جذبہ سکھائے ہسبینڈ کی خدمت کرنے کا، اسے پتا ہو کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے تابع رہنا ہے، خدمت کرنی ہے، چپ رہنا ہے، گلے شکوے نہیں کرنے، جو روکھی سوکھی وہ دے اس پر اکتفا کرنا ہے، اور اللہ کے حضور
साबिर और शाकिर रहना है। तो फिर जिस माँ बाप ने ऐसी बेटियों की परवरिश की होगी वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे जन्नत में। ये है असल उसमें हिकमत कि अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी करें। खुदारा बहुत जरूरी है। अच्छी माँ मुआशरे को संवार सकती है। और जो बीवियां अपने हस्बैंड की बिल्कुल इज्जत नहीं करती, लिहाज नहीं करती, बदतमीजियां करती हैं, लड़ाइयां झगड़े करती हैं, उसको हर बुरी बात पर उकसाती हैं, जायज नाजायज हराम या हलाल कहती हैं लेके आओ, बस ये मेरी ख्वाहिश पूरी करो, जेवरात की ख्वाहिश, कपड़े की ख्वाहिश, कॉस्मेटिक्स मेकअप की ख्वाहिश, गाड़ी बंगले की ख्वाहिश, वो किधर जाएंगी? वो खुद भी जहन्नम जाएंगी और अपने हस्बैंड को भी लेके जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर बुराई पर वो उसे उकसाती रही। कभी उसे कहा कि माँ बाप को छोड़ दो, मुझे अलग घर लेके दो, कभी उसे कहा कि हराम हलाल सब कुछ करो, मेरी ख्वाहिशात पूरी करो, और कभी उसके साथ बदतमीजियां की, नाफरमानियां की, उसकी नहीं घर में चलने दी, सारी बातें अपनी मनवाई। खुदारा ऐसे ना किया करें। एक और हदीस मुबारक, बहुत सारी हदीस हैं, आपको साथ साथ इसलिए सुनाता रहता हूँ कि शायद के उतर जाए मेरी बात आपके दिल में और आपको समझ आ जाए, जिंदगी आसान हो जाए, कब्र और हशर महफूज हो जाए और अल्लाह पाक आपको जन्नत अता फरमाए। सख्त तरीन अल्फाज हदीस मुबारक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान कि हस्बैंड का हक कैसे अदा होता है। हुजूर ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि अगर किसी के हस्बैंड को जिस्म पर कोड़ पड़ जाए, कोड़ प्लेग, जख्म बने हों, फिंसियां फोड़े हों उसके जिस्म पर, कोड़ पड़ जाए, और उसकी बीवी औरत हर रोज जुबान से चाट कर उसके जख्म साफ करे रोजाना। जरा गौर कीजिएगा, इससे ज्यादा वर्स्ट क्या होगी ताबेदारी, इससे ज्यादा और क्या खिदमत गुजारी होगी। तो फिर भी बीवी अपने हस्बैंड का हक अदा नहीं कर सकती। ये करके, ये अमल करके, उसके जख्म साफ करके, फिर भी बीवी अपने हस्बैंड का हक अदा नहीं कर सकती। जिस तरह एक बेटा अपने कंधों पर अपनी मां को उठा के हज करा दे, तो उसकी एक रात की मां की जो शफकत है, जो ममता उसने दिखाई अपने बेटे को, वो एक रात का देन नहीं दे सकता। इसी तरह औरत अपने हस्बैंड का देन नहीं दे सकती। खुदारा इस बात को समझें, अपने हस्बैंड से बदतमीजी ना किया करें, अपने हस्बैंड की बदखोई, बुराई, चुगली ना किया करें, अपने हस्बैंड की शिकायतें अपने मायके में या अपने ससुराल में या अपनी सहेलियों में बैठकर ना लगाया करें। नुकसान है इसमें, बहुत बड़ा नुकसान है। अपने हस्बैंड की खिदमत किया करें, ताबे रहा करें, जिस तरह वो कहे वैसे किया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला इसका अजर आपको दुनिया में औलाद की शक्ल में भी अता फरमाएगा और कब्र और हशर में भी आपकी इज्जत को बुलंद किया जाएगा। अल्लाह पाक हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को अल्लाह पाक समझ बूझ अता फरमाए। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा फायदा तो स्टेट में शुरू हो जाएगा औरतों के सब्र करने पर, खामोश रहने पर, के घर में सुकून हो जाएगा। ये जितनी भी लड़ाइयां हैं ये बस इधर ही से शुरू होती हैं। कभी ननंद भावज का झगड़ा, कभी सास बहू का झगड़ा, बस बर्दाश्त करें भाई, सब्र करें और जो आपका हस्बैंड कहे उसको बजा लाएं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। या रब्बे जुल जलाल,
या मालिकुल कुद्दूस, तेरे नाम मुबारक का जिक्र किया, हक अदा नहीं कर सके, कोशिश की है, कबूल मकबूल फरमा। ये महफिल जिक्र हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह अपना करम अता फरमा, अपना फजल अता फरमा, अपनी रहमतों की बारिश अता फरमा। अल्लाह हमारी इल्तिजाएं, दुआएं, तौबा सब कबूल फरमा ले। हमारी इबादत, हमारी खिदमत, हमारे सदकात खैरात, हमारे हज ज़कातें सब कबूल फरमा ले। जो भी आज तक नेक अमल किए, खैर और भलाई के काम किए, अल्लाह सब कबूल फरमाते हुए हमारे वालिदैन की, हमारी औलादों की, आने वाली नस्लों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देना, बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देना। हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा देना। अल्लाह हम पर, हमारी औलादों नस्लों पर रहम फरमाना। अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन और आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमानो पनाह अता फरमा। अपना फक्र, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र और फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो भी आज तक हमारे मशाइख असातिज़ा ने हमें सिखाया, पढ़ाया, समझाया, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो भी इल्म, जो समझ बूझ दीन की हम तक पहुंच गई, आ गई, हमने सुन ली, पढ़ ली, देख ली, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें हर उस नेक अमल की तौफीक अता फरमा जिसमें तू और तेरा महबूब राजी होते हो। हर उस बुराई, गंदगी, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा अल्लाह जिससे तेरी और तेरे महबूब की नाराजगी होती हो। बेशक नेकी करने की तौफीक और बुराई से बचने की ताकत नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे तू दे, बेशक सब तौफीकें तेरे पास हैं, सब ताकतें तेरे पास हैं। अल्लाह हमें हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमा। शैतान के शर से बचने की तौफीक अता फरमा, शैतान की और नफ्स की चालबाजियों से बचने की तौफीक अता फरमा। कुफ्फार के नापाक इरादों से हमें बचा या अल्लाह, काज़बीन से, हासदीन से, चुगलखोरों से हमें बचा। हम पर रहम फरमा, हमारी औलादों नस्लों पर रहम फरमा, हमारी इल्तिजाएं कबूल फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा। जो आज तक मांगी सब कबूल फरमा ले। अल्लाह जो दिलों में रह गई वो भी कबूल फरमा ले। जो अल्लाह हमारी जुबानों पर, लबों पर आ गई वो भी कबूल फरमा ले। और जो हमारे हक में बेहतर है अल्लाह वो भी अता फरमा दे, वो अपने शान करीमी से अता फरमा दे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज है उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा, जो बेरोजगार हैं अल्लाह उन्हें हलाल और तैयब रिज़्क़ अता फरमा, जो अपने कारोबार के लिए परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत, वुसअत और तरक्की अता फरमा। अगर किसी को कोर्ट कचहरी का, इमिग्रेशन का मामला है, अल्लाह अपने खजाना गैब से उनकी मदद अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में कबूल व मकबूल फरमा। उमर बाबा के लिए, शजीद्दीन के लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह उनके लिए बेहतर असबाब अता फरमा। अदील साहब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह शिफा अता फरमा। रिजवान और अजीम साहब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उनको बहुत सारा अरूज और तरक्कियां अता फरमा। हुसैन बाबा के लिए, हबीब भाई के लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह अपना खास करम अता फरमा। अब्दुल कदीर शाह साहब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह अपने खजाना गैब से उनकी तमाम ख्वाहिशें, तमाम जरूरतें, तमाम हाजात पूरी फरमा दे। बहुत प्यारे, बहुत मोहब्बत वाले साथी हैं, अल्लाह उन पर अपना खास लुत्फ और करम अता फरमा। हमारे भाई हैं इरफान साहब बेल्जियम में, उन्होंने दुआ के लिए कहा, अल्लाह उन पर करम अता फरमा, उनके दिल को, उनके दिमाग को इत्मीनान अता फरमा। या अल्लाह उनकी जो भी परेशानियां हैं, अज़दवाजी हैं, मुआशरती हैं, ज़ाहरी हैं, बातनी हैं, या अल्लाह सब परेशानियों से मुबर्रा फरमा दे, उन्हें खासुल खास करम अता फरमा उन पर। हमारे साथी हैं इटली में अब्बास साहब, अल्लाह उन पर अपना लुत्फ़ करम अता फरमा। उनके भाई हैं आजम साहब, उन पर अपना करम अता फरमा। किबला शाह साहब हैं, रिजवान शाह साहब पेरिस में, अल्लाह उन पर, उनके साथियों पर बहुत सारा करम, बहुत सारा फैजान अता फरमा। शाह साहब किबला के दर्जात आला तरीन फरमा।
और भी जितने साथी आगे पीछे बहुत सारे हैं, इंडिया में बहुत सारे हैं मोहब्बत वाले, दुआओं के लिए कहते हैं, राब्ते के लिए कहते हैं, राब्ता करते रहते हैं। या अल्लाह सब पर अपना करम अता फरमा। जिनके मैंने नाम लिए वो भी, जिनके नाम नहीं ले सका, अल्लाह बेशक वो मुझे बहुत अजीज हैं, तो उन पर करम अता फरमा। जितने भी साथी, जिन्होंने भी, मर्दों ने, औरतों ने, बच्चियों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने, जिन्होंने भी या अल्लाह इस दुआ में हाथ उठा के आमीन कहा, मेरी तमाम दुआएं उनके हक में कबूल व मकबूल फरमा। जो मुझे अता फरमाया अल्लाह इन सबको भी अता फरमा दे। जो भी सामाइन और नाजरीन अभी शामिल हैं उनको भी अता फरमा दे, और जो बाद में इसको किसी और सोर्स से, किसी और टेक्नोलॉजी के जरिए देखेंगे, दुआ में शामिल हो जाएंगे, अल्लाह उनको भी अता फरमा देना। अल्लाह हम सब की झोलियां खुशियों से भर देना, ऐसा करम अता फरमा। ता देर क़यामत तक के लिए ये फैजान जारी और सारी फरमा। अल्लाह जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा, आपके खानवादों की खैर फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक उम्र खिजरी अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज पूरी दुनिया में आम फरमा। जितने भी मशाइख और असातिज़ा या अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ शफकत करते हैं, सिलाए रहमी बरतते हैं, अल्लाह उन सब के दर्जात आला तरीन फरमा। मेरे दोस्त अहबाब के सब के दर्जात आला तरीन फरमा। मेरे बहन भाइयों की, उनकी फैमिलियों पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। हमारे ननियाल, ददियाल, ससुराल में जितने भी मर्द, औरतें, बच्चे हैं, अल्लाह सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। जहां जहां भी बैठकर ये महफिल जिक्र सुनी जा रही है, देखी जा रही है, ये आवाजें, ये सदाएं, ये दुआएं बुलंद हो रही हैं, अल्लाह उन घरों पर अपना खास लुत्फ़ व करम अता फरमा। उन घरों में इत्मीनान अता फरमा, उन घरों में सुकून अता फरमा, उन घरों में बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, खुशहाली, खैर बरकत अता फरमा, तस्लीम और रजा अता फरमा, इत्मीनान और सुकून और यकजहती अता फरमा। उन घरों पर, उन दरो दीवार पर, उन दरों पर आने वाले हर नेक नियत साइल पर अपना करम अता फरमा। अल्लाह तुझसे तेरे महबूब के सदके वसीले से मांगते हैं, अल्लाह तमाम दुआएं कबूल फरमा ले। आज तक जो मांगी सब कबूल फरमा ले। हमारे मशाइख, असातिज़ा, वालिदैन ने जो हमारे लिए मांगी वो भी कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमा इन दुआओं के बदले में। अल्लाह हमारी तमाम इल्तिजाएं, दुआएं कबूल फरमा। दुनिया और आखिरत में खैर और भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमा। अल्लाह हमारी बहुत सारी कोताहियां हैं, खताएं हैं, गलतियां हैं, सगीरा कबीरा गुनाह भी होंगे, हम शर्मिंदा हैं, एतराफ करते हैं, अल्लाह माफ फरमा दे, अपने करम से माफ फरमा दे। तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है, हमें माफ फरमा दे। तौबा करते हैं, सिद्ध के दिल से तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा ले। आइंदा गुनाह की तौफीक ना रहे, ऐसा करम अता फरमा। जो हमारी बहनें, बेटियां आज की तालीमात से कुछ सीखी हैं, जिन्होंने नेकी का, खैर का, भलाई का इरादा किया है, अल्लाह उन्हें इस्तकामत अता फरमा दे। बेशक इस्तकामत तेरे पास है अल्लाह, तू जिसे हदायत दे उसे गुमराह कर कोई नहीं सकता, और यार रब्बुल इज्जत जिसे तू गुमराही में छोड़ दे उसे हदायत दे कोई नहीं सकता। तेरी बारगाह से हदायत मांगते हैं, हमारी बहनें, बेटियां, सबको हदायत अता फरमा, सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा, सब पर अपना करम अता फरमा। कुल उम्मत मुसलमान पर अपना करम अता फरमा, आलम इस्लाम पर अपना करम अता फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों पर अपना करम अता फरमा, मुसलमानों की इमलाक और इज्जत शर्मों पर अपना करम अता फरमा, हया के पर्दे अता फरमा। अल्लाह हमें नजर बद से बचाना, हमें हासिदीन से बचाना, कुफ्फार के नापाक इरादों से बचाना, कुफ्फार की बुरी नीयतों से हमें बचाना, मुसलमानों को इज्जत सरवरी अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना, आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफातिक। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज की महफिल आप सबको मुबारक हो, और जितनी भी दुआएं मांगी अल्लाह सारी आपके हक में कबूल फरमाए। एक एक इंडिविजुअल, एक एक फर्द जो इस महफिल को देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह उसके हक में कबूल और मकबूल फरमाते हुए
اس کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ و منزہ کر دے۔ آپ کو آج کی محفل بہت مبارک ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔